مشیر بصیر احمد خان نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع بارہمولہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بارہمولہ کے انڈور اسٹیڈیم میں کوارنٹین مرکز کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این ایتو بھی مشیر کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عالمی وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر مناسب اقدامات کیے گئے ہیں اور انڈور اسٹیڈیم بارہمولہ میں ایک نئے 100 بستروں پر مشتمل کوارنٹین مثالی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر کے مشیر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ضلع میں 19 انتظامی سنگین مراکز موجود ہیں جن میں اب تک 302 افراد کوارنٹین کیے جا چکے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ضلع میں کوارنٹین کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات کریں اور کورونا وائرس کی علامات والے مسافروں کو فوری طور پر کوارنٹین سینٹر بھیجا جائے۔ کورونا وائرس کے مثبت معاملے بانڈی پورہ میں سب سے زیادہ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالات پر باریک بینی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تیزی سے جانچ کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ پیش بانڈی پورہ سے سعید کی رپورٹ۔ جموں کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں کورونا وائرس کے پازیٹیو کیس سب سے زیادہ ہیں۔ 20 اپریل تک ضلع میں کورونا وائرس کے 91 مثبت معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فوت شدہ شخص کچھ عرصے سے بیمار تھا اور لوگ اس کی عیادت کو آتے تھے، تاہم موت کے بعد اس شخص کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا اور یوں اس شخص کے افراد خانہ کے ساتھ ساتھ نزدیکی پڑوسی اور رشتہ داروں کے ٹیسٹ بھی مثبت آ گئے۔ آج تک ہمارے پاس 41 کیسز گنڈ جہانگیر میں ہی ہیں اور ہمارا جو ہاٹ سپاٹ ہے وہ گنڈ جہانگیر ہی ہے اور آج اور کل سے ہم لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ریپڈ ٹیسٹنگ کے سلسلے میں، تو سو دیٹ وی کین سی دا پیپل ہاؤ مچ کنٹیکٹ۔ دوسری جانب ڈی سی بانڈی پورہ کا کہنا ہے کہ ضلع میں کورونا وائرس کے مثبت معاملوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بانڈی پورہ میں ریڈ زون قرار دیے گئے 12 علاقوں میں سے 9 علاقوں میں اب کافی بہتری آئی ہے اور اس دوران 15 افراد مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ زیادہ کیسز اس میں سے صرف 2 ہمارے ریڈ زون ہیں، گنڈ جہانگیر اور نائر کھائی، جس میں 51 کیسز وہیں کے ہیں۔ اگر وہ آپ انہیں الگ کر دیں تو پھر فگر کافی نیچے آ جاتی ہے۔ نائر خیر اور گنڈ جہانگیر میں لیٹ پتہ چلا، جو پہلا کیس تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایسمپٹومیٹک تھا، اسے خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہ وائرس لگا ہوا، تو لیٹ پتہ چلنے کی وجہ سے وہاں تھوڑا زیادہ پھیلا کافی۔ انتظامیہ کے مطابق بانڈی پورہ میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بانڈی پورہ سے سعید کی رپورٹ۔ چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ ڈاکٹر کونسر امین نے کووڈ اسپتال کپواڑہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص آئسولیشن وارڈ کا معائنہ کیا، جس کے دوران مریضوں کو دی جانے والی طبی امداد کی جانکاری لی اور ان کی صحت کے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ ان کے ہمراہ مزید 4 ڈاکٹروں کی ٹیم بھی تھی۔ واضح ہے گزشتہ روز کووڈ اسپتال کپواڑہ میں زیر علاج مثبت مریضوں نے اسپتال کے اندر صفائی اور سہولیات کی عدم دستیابی کے متعلق ایک ویڈیو نیوز 18 کو بھیجی تھی اور چیف میڈیکل آفیسر نے نیوز 18 کو یقین دلایا تھا کہ وہ از خود اس کا نوٹس لیں گے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشل گرگ نے چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چیف میڈیکل آفیسر نے نیوز 18 کو فون پر جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں زیر علاج کورونا وائرس کے سبھی مریض بہتر حالت میں ہیں اور انہیں مناسب سہولت کے ساتھ ساتھ طبی امداد بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ اس دوران پہلے دن کپواڑہ کے جن 6 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے ان کی حالت میں سدھار آیا ہے اور ان کے ٹیسٹ اب نیگیٹو آ گئے اور انہیں گھروں کو رخصت کیا گیا ہے۔ جو ہمارے پہلے 6 کو 6 پازیٹیو پیشنٹس آئے تھے وہ سارے آج وہ اس میں سے 5 ہمارے جی ایم سی بارہمولہ میں ایڈمٹ تھے، ایک سکمز فورم میں ایڈمٹ تھے۔ ان کے جو ری ٹیسٹ کیا 2 باری کیا وہ نیگیٹو آیا اور ان کو آج ڈسچارج کیا گیا، ان کو ہم نے اپنے گھروں میں بھیج دیا۔
बारामूला के शाहकोट में कोविड-19 के 30 तबलीगी जमात से वाबस्ता मरीजों की रिपोर्ट मनफी आने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर से घर रवाना कर दिया गया है। बाकी मरीजों को शाहकोट के कोविड सेंटर में रखा गया है। तबलीगी जमात के अरकान ने बात करते हुए कहा कि इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई थी। कि हमारे लिए माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जिस तरह भी रहे अच्छे रहे। आप क्या बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला अल्लाह के फजल से, ठीक मिला सब कुछ। इधर है तो यहाँ पे भी अच्छा लगा। हमने अपनी तस्बीह तिलावत जो थे, हमारा तालीम थी, हमारा मज़ाक़ा था, वो हम करते रहे। अल्लाह से अल्लाह की मदद मांगते रहे हम अल्लाह से। तो अब यही बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना ले। हमारे पास 120 तबलीगी जमात के हमारे भाई यहाँ पे JNV शाहकोट के हॉस्टल्स में क्वारंटीन में इनकी आज मुद्दत मियाद मुकम्मल हुई। इनको हम आज छोड़ रहे हैं। इनके टेस्ट्स भी नेगेटिव पाए गए हैं और आज ये अपना क्वारंटीन मुकम्मल करके अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। खुशखबरी हमारे लिए ये है कि हमारे जो पहले 6 पॉजिटिव केसेस साबित हुए थे, तो उनमें से 5 अभी तक हमारे रिपोर्ट्स नेगेटिव उनके इस वक्त आ रहे हैं। तो शायद उनको आज घर जाने की इजाज़त इंशाल्लाह मिलेगी। पुलवामा में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से बचाव के एक हिस्से के तौर पर दिही निगरानी टीमों को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया गया है। निगरानी ऐप के तहत ये टीमें कोविड-19 से मुतल्लिक अपने देहात की तफसीलात इंतजामिया को फराहम करेंगी। ये खुसूसी टीम इस ऐप के जरिए ज़िला इंतजामिया से जुड़े रहेंगे। ऐप के जरिए ये न सिर्फ गांव में लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात देंगे, बल्कि टीम पूरे गांव में पूरी तरह स्क्रीनिंग भी अमल में लाएगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और इस जानलेवा बीमारी से हर कोई खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कश्मीर में भी कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और बाकी तिब्बी अमला फोरफ्रंट पर लड़ रहे हैं। ऐसे में कश्मीर में कई रिसर्च स्कॉलर बतौर वॉलंटियर्स अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इन वॉलंटियर्स में कश्मीर से 2 लड़कियां हुमा और बिस्मा शामिल है, जो श्रीनगर के CD अस्पताल में टेस्टिंग के काम में अपना ताउन पेश कर रही हैं। पेश सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ कई महाजों पर काम जारी है। यहाँ के कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला दिन रात ड्यूटी करते हुए एक तरफ बीमारों का इलाज कर रहा है, तो दूसरी जानिब कोरोना पॉजिटिव केसेस के राब्ते में आए उनके अहले खाना और बाकी कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ कई रजाकार यहाँ अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इन्हीं में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 2 PhD रिसर्च स्कॉलर्स हुमा राहिल और बिस्मा अहद भी शामिल है। ये दोनों श्रीनगर के चेस्ट डिसीज अस्पताल के BSL, जिसे इन्फ्लुएंजा लैब भी कहा जाता है, RNA एक्सट्रैक्शन के साथ साथ QT-PC करती हैं। हुमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में बतौर जूनियर रिसर्च फेलो काम कर रही है और बिस्मा श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी शोबे से डॉक्टरेट कर रही है। एज ऑन कोरोना हॉलीडेज़ तो घर पे मैं ऐसी बेकार बैठी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि लेट्स वॉलंटियर फॉर इट। आई एक्चुअली पोस्टेड रिगार्डिंग दिस इन कोरोना वायरस वॉच, देयर इज़ अ ग्रुप ऑन फेसबुक। एट द सेम टाइम आई ट्वीटेड टू DC शाहिद, लाइक वी हैव PCR मशीन्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, वी कैन पूल आउट ऑल दोज और हम वो यूज़ कर सकते हैं इन टेस्टिंग, वेरियस टेस्टिंग। आई डोंट नो कि उनके गवर्नमेंट के दिमाग में ये कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया। एंड दे वेंट टू द कश्मीर यूनिवर्सिटी वेयर they talked to the various officials, various professors over there. मैंने भी अपना नाम दिया. I am ready to volunteer because at home I am like sitting idle. I do have expertise in these testing. Why can't I contribute to the lab? तो हमारा ये काम है कि टेस्टिंग के लिए बहुत सारे बैकलॉग्स पेंडिंग थे और बहुत सारी सैम्पलिंग्स पेंडिंग थी जिनके टेस्ट्स नहीं हो रहे थे। सो हमने वॉलंटियर किया ताकि हम इस टाइम सोसाइटी को हेल्प पहुंचा सके फॉर टू सर्व द ह्यूमैनिटी। सो हम आ गए और हमें टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वी डू द RNA एक्सट्रैक्शंस देयर, देन उसके बाद वी डू QT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये टेस्टिंग होती है। हुमा और बिस्मा को 3 दिन काम के बाद 3 दिन ऑफ दिया जाता है, मगर ये लोग घर नहीं बल्कि इस दौरान इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई फैसिलिटी में ही रहती हैं, ताकि ये खुद भी महफूज रहे और उनकी वजह से किसी को कोई खतरा भी ना हो। वहीं इन दोनों को शुरू में घर वालों की जानिब से मुखालिफत का भी सामना रहा, लेकिन इस अहम फरीजे की अदायगी के लिए दोनों ने अपने घर वालों को मना लिया।
Regarding my family, तो earlier they were reluctant कि नहीं जाना है, it's very deadly, it's like risking life, it's like a suicide, you are doing it. So I was like, it's my personal satisfaction. अगर मेरे अंदरून को ये मेरे रूह को इसकी वजह से एक satisfaction मिलती है, तो why can't I do it? Father was very उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. He was like, if you are willing to do it, I am with you, you go. So later on मेरी जो अम्मी थी तो वो भी इसके लिए तैयार हो गई. फादर है, मदर है, तो वो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे इस चीज़ के आने के लिए, क्योंकि ये फ्रंट लाइन है वायरस. कन्विंस किया कि उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे सोसाइटी को आराम ना पहुँचे. जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से कही, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने अलाउ किया मुझे और मैं आ गई. मौजूदा मुश्किल हालात में हुमा और बिस्मा की रजाकाराना खिदमात काबिल तहसीन है, साथ ही दीगर लड़कियों के लिए तहरीक का बायस भी है. इनका कहना है कि मुसीबत की एक घड़ी गुजर जाएगी, ताहम इन हालात में सभी को इस मोहलिक वबा के खिलाफ डटकर मुकाबला करना होगा. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुख की रिपोर्ट. न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है. कल न्यूज़ 18 उर्दू ने बडगाम से खबर चलाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि बडगाम के कई इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी हुई थी. न्यूज़ 18 उर्दू ने जब यह मसला इंतजामिया के सामने उठाया तो इंतजामिया हरकत में आई. आज जम्मू कश्मीर बैंक की बडगाम शाख पर हमने अलग मंजर देखा. कल जहां लोगों की लंबी कतार देखने को मिली थी, वहीं आज पुलिस बैंक के बाहर खड़ी रही और कुर्सियां लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया. लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया. मामला उठाया, उसी वजह से आज हमारे डीसी साहब ने भी बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ भेजा है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए. हम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके अकाउंट में जमा पैसे हुए हैं वो आपके पैसे हैं, लेकिन हम J&K बैंक आपका अपना बैंक है. अगर आप चाहो तो हम शाम तक, रात को भी आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से उनको एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारी सेहत का ख्याल रखें. कल की तस्वीरें हमने देखी, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग जमा थे. पुलिस को भी भीड़ को कंट्रोल करने में दुश्वारियाँ हो रही. फ़िलहाल यहाँ पे लोग जो है आज लोगों की भीड़ कम है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है. पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है. वो लोगों से कह रहे हैं कि आप आराम से बैठे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें ताकि जो ये वायरस है इसे फैलने से रोका जा सके. समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम. जम्मू के टूरिज्म फेडरेशन के चेयरमैन राजेश गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से अपील की है कि वो महकमे सयाहत से रजिस्टर्ड तमाम होटलों, लॉज, गेस्ट हाउसेज और ट्रैवल एजेंसियों के बिजली और पानी के बिलों को माफ़ कर दिया जाए. उन्होंने सयाहती शोबे में मुलाजमत करने वाले निचले अमले के लिए कमीशन एजेंट, टिकटिंग एजेंट, खिदमात फराहम कुनंदगान, बावर्चियों और ड्राइवरों की माली इमदाद फराहम करने की भी गुजारिश की है. राजेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के बहरान के नतीजे में हुए लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा सयाहती शोबे को बुरी तरह मुतासर किया है और आने वाले बरसों में इसकी बहाली के इम्कानात भी नहीं दिख रहे हैं. पुनर्स्थापित होने की भी कोई संभावना नहीं लग रही. इस वजह से इस उद्योग के साथ जुड़े सभी लोगों को सरकारी इमदाद की ज़रूरत है. हमारा सरकार से ये आग्रह है कि पर्यटन की से जुड़ी हुई सभी इकाइयाँ, चाहे वो होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ढाबे और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, उन सभी के बिजली और पानी के बिल इस दौरान माफ़ किए जाएं. जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन सब को एक सरकार की तरफ से कोई महीनावार कुछ सहायता मिलनी चाहिए. जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार से हम दरखास्त करेंगे कि उद्योग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर के एक व्यापक योजना बनाई जाए. जम्मू टैक्सी एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर इंद्रजीत शर्मा ने सैंगडू टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए माली पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से टैक्सी ऑपरेटर्स को बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें फाक़े की सूरत हाल का सामना है. लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को उनके लिए कोई न कोई रिलीफ पैकेज का इंतज़ाम करना चाहिए. जी, हम आपसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा लॉकडाउन की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है उसकी भरमाई की जाए, हमारी ओर भी देखा जाए, क्योंकि हमें
ये बड़ी आशा होती है कि मार्च महीने से हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सीज़न जो है हमारा ख़त्म हो गया, हमारा पूरा साल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ ही हमें एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 6 महीने का किराया कम से कम माफ़ किया जाए। ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है। कश्मीर में काम कर रहे डायग्नोस्टिक लैब्स ने इंतजामिया की जानिब से लैब्स को खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। इंतजामिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की गुजारिश की है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने मौजूदा हालात के पेश नज़र यहाँ पर लोगों को रियायत देने का भी फैसला किया है। सबसे पहले से जिस दिन ये बंद हो गया उसी दिन सुबह मैंने डीसी साहब को लेटर डाली थी कि भाई हमें अलाउ किया जाए, ताकि ये जो हमारे बीमार लोग हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस हैं, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए कुछ चंद क्लिनिक्स खोल दिए जाएं। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ऑर्डर उस वक्त नहीं दिया कि भाई, लेकिन और जो उनको वर्बली कहना था नहीं भाई आप खोल सकते हो, लेकिन आज उन्होंने अच्छी तरीके से एक मेहरबानी की यहाँ के गरीब आवाम पे कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब सीधे खोल दिए जाएं, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमने और प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी खुशी है कि लाल पथ लैब ने प्राइवेट सेक्टर में भी कोविड-19 का टेस्ट शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीरी ज़ायरीन और तलबा की घर वापसी हुई। ईरान से लाने के बाद जैसलमेर में क्वारंटीन किया गया था। करीब 35 दिनों के बाद श्रीनगर पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग के बाद लोगों को उनके घर भेजा जाएगा। एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने बयान दिया है। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने राजस्थान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नाज़रीन, कश्मीरी ज़ायरीन और तलबा की घर वापसी हुई है। ईरान से लाने के बाद जैसलमेर में क्वारंटीन किया गया था। करीब 35 दिनों के बाद श्रीनगर पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस की वबा से पैदाशुदा सूरत हाल पर राजेश रैना ने एक और नज़्म लिखी है। उर्दू और कश्मीरी ज़बान में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिल को छू लेने वाली नज़में तहरीर करने वाले राजेश रैना ने अपने प्याम में लोगों को खबरदार किया है। उन्होंने इन नाजुक हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। इस वबा से बचने के लिए सब होशियार रहें। पेश है राजेश रैना की नज़्म उन्हीं की ज़बानी। सलाम नमस्कार। वनकन प्रत जाए कोरोना वायरस डर तो खौफ, मगर अस नत खोचुन, अस अमिक मुकाबले कर, यह हारनावन कित कन ये घरन मज बेहमो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। मे कह शार लिखमित तो बूझू मे मे तुम पसंद। शाह तुलन जागान कातिल हेस थव्यो, शाह तुलन जागान कातिल हेस थव्यो, वत छ मुश्किल दूर मंजिल हेस थव्यो, वत छ मुश्किल दूर मंजिल हेस थव्यो, बाखबर रूजू छु नोजुक वख सेठा, बाखबर रूजू छु नोजुक वख सेठा, यथन दुश्मन दीव खोनकिल हेस थव्यो, युथन दुश्मन दीव खोनकिल हेस थव्यो, शाह तुलन जागान छु कातिल हेस थव्यो, दार बर मंदरन मशीदन बंद करिख, दार बर मंदरन मशीदन बंद करिख, जन गोमुत महशर छु नाजिल हेस थव्यो, जन गोमुत महशर छु नाजिल हेस थव्यो, शाह तुलन जागान छु कातिल हेस थव्यो। आखिरी शार छु,
बोझ कुस फरियाद कुस वन कर सवाल, बोझ कुस फरियाद वन कुस कर सवाल, जोर छु हाकिम कुल छु साइल हेस थव्यो, जोर छु हाकिम कुल छु साइल हेस थव्यो, शाह तुलन जागान छु कातिल हेस थव्यो। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल और सेशन जज शोपियां सिकंदर आजम ने अपनी टीम के साथ दरमानदा मजदूरों के कैंपों का दौरा किया और उनसे उनकी दुश्वारियों के बारे में दरियाफ्त किया। साथ ही जल्द अज जल्द उनकी परेशानियों के अजाले के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत पर प्रिंसिपल और सेशन जज शोपियां सिकंदर आजम ने इन इलाकों का दौरा किया जहां मजदूरों को रखा गया है। प्रिंसिपल और सेशन जज ने डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ तफसीली गुफ्तगू की। डीसी ने प्रिंसिपल और सेशन जज को यकीन दहानी कराई कि सभी दरमानदा मजदूरों को तिबी सहूलियात समेत तमाम ज़रूरी अशिया फराहम कराई जाएंगी। जिला गांदरबल में लॉकडाउन के दरमियान हाल ही में एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें छतरगुल के जंगलात वाले इलाके में दरख्तों की कटाई करते हुए दिखाया गया है, जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल के दायरे इख्तियार में आता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेंज में दर्जनों दरख्त काट दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने हमारे नुमाइंदे के जरिए मामले को उनकी नोटिस में लाए जाने के बाद उस पर उन्होंने अज खुद कार्रवाई की और फौरी तौर पर छतरगुल जंगलात के हदूद में काम करने वाले फॉरेस्ट गार्ड को मुअत्तल करने का हुक्म दिया और महकमे जंगलात की टीम को लकड़ी के स्मगलिंग समेत तफ्तीश के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का हुक्म भी दिया गया। इस बीच इस इलाके के एक मकामी समाजी कारकुन ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और मुतल्लिका महकमे से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की। इस बेदर्दी से कटा जा रहा है, ये एक बड़ा तशवीश का मुकाम है। इसलिए मैं महकमा जंगलात से गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम अपने डिपार्टमेंट को जो है वो इसमें अलर्ट करे ताकि इस तरह का नुकसान। मैंने डीएफओ जो सिंध है उससे मैंने बात की है, उसको मैंने बोला कि इमीडिएटली ये जो फॉरेस्ट गार्ड जो होगा इसका कंसर्न, उसको इमीडिएटली आप सस्पेंड करो और उसके बाद इनिशिएट करो इंक्वायरी, और इंक्वायरी इनिशिएट करके हफ्ते के अंदर हमें पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है और सच कितना है। उसके बाद अगर और कोई मतलब इसमें पाया जाएगा, दरख्त कटे होंगे, हकीकत होगी, तो इसमें हम और एक्शन लेंगे और जो जो जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने में कोई दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने एक दिन की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर पुंछ जिले में एलओसी के करीब हिंदुस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की जानिब से कस्बे और केरनी सेक्टर में गोलाबारी की गई और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की इस हरकत से मकामी लोगों में खौफ व हिरास है। यहाँ पे आए रोज़ इस तरह हर रोज़ ही लगभग होती है यहाँ पे फायरिंग, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फायरिंग की वजह से अक्सर हमारे यहाँ पे ना कोई कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाता है। हम कोई हमारा कोई बाकी कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि जब अगर फायरिंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे गुजारिश करता हूँ, डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैंकर, सिंगल बैंकर दिए जाएं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडर और साबिक वज़ीर अब्दुल गनी वीरी की बरसी के मौके पर उन्हें पार्टी ने खराज अक़ीदत पेश किया। गनी वीरी का शुमार मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथियों में होता है। आज उनके मज़ार पर पार्टी के कारकुनों ने फातह ख़्वानी की और मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। ताहम कोरोना की सूरत हाल के मद्देनज़र आज पार्टी की जानिब से कोई भी इज्तिमाई तक़रीब मुनक़्क़िद नहीं हुई। इस मौके पर मरहूम के फ़र्जंद और साबिक़ MLC डॉक्टर बशीर वीरी और अली मोहम्मद सागर और पार्टी के दीगर लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया गया। डॉक्टर वीरी और अली सागर गुज़िश्ता साल अगस्त से नज़रबंद है। पार्टी कारकुनों का कहना है कि डॉक्टर वीरी की बिगड़ती सेहत के मद्देनज़र अब सरकार को उनकी रिहाई के अहकामात सादिर करने चाहिए। हाजी अब्दुल गनी शाह वीरी की 5वीं बरसी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के धीरे न सीनियर लीडर से मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े जानबदारी से काम की है और बदकिस्मती से आज हम ये महसूस करते हैं कि इसका बेटा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब जो है
वो भी लीडर है, सीनियर लीडर है वो भी, और इस बिजवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी है। बदकिस्मती के वो इस वक्त बंद है, नज़रबंद है। हम गवर्नमेंट से अगर वो भी इस वक्त यहाँ पर होता तो अजीब रौनक होती है, लेकिन हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि उसकी तबीयत भी अब नासाज है, वो बेचारा बीमार है उधर, अगर हो सके इनको तो उसको रिलीज़ कर दे। इंतजामिया राजौरी ने ज़रूरी अशिया की दुकानों के साथ कुछ दीगर बंदिशें भी हटा दी हैं। साथ ही MG नरेगा और खेतों में होने वाले काम से मुतल्लिक़ समाजी फासले पर अमल करते हुए किसानों को इजाज़त दी गई है। इंतजामिया के फैसले से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों में बहुत खुशी है। करते हैं कि सर हम गरीब आदमी थे, हमें रोज़गार नहीं था, अभी प्राइवेट काम भी बंद हैं, तो हमें ये अगर निर्गा का रोज़गार मिल गया है, हमें 2-2, 3-3 महीने का काम मिलेगा तो हमारा जो है सैलरी मिल जाएगा, हम आराम से अपना घर का रोज़गार चलाएंगे। उसके बाद फिर भी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पूरी सहायता करेगी। ब्लॉक कुंजर में मुख्तलिफ तामीराती कामों को शुरू किया गया। नरेगा के तहत मुख्तलिफ मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और मास्क पहनते हुए काम करना शुरू कर दिया है। हुकूमत के इस इक़दाम पर मजदूर काफ़ी खुश नजर आए। मजदूर तबके खाली से मुतासर हुआ है, मजदूर तबके को असर पड़ा है इससे। तो फिर इसके बाद आलमी वबा या मतलब पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ किया हमारे लिए, हम इससे मुतमईन है। और लेकिन जब भी गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल निकाला, इशू निकाला, ऑर्डर निकाला है, काम करो, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखो। मजदूर बहुत खुश है कि मजदूरों को काम करने की इजाज़त मिल गई। गवर्नमेंट ने कहा मास्क लगाओ और ग्लोव्स लगाओ, काम करो। डायरेक्शंस हमारे पास हैं वो ये हैं कि जितने भी आप काम उठाएं उसमें हम प्रायोरिटाइज इरिगेशन वर्क्स को करें, उसमें हम प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क्स को करें, उसमें हम प्रायोरिटाइज वाटर कंजर्वेशन वर्क्स को करें, या इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स के लिए। ये पूरा लॉकडाउन नहीं उठा है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए स्टार्ट किया गया है। बेरवा के बिरिहामा इलाके के लोगों ने बिजली सप्लाई की अदम दस्तियाबी पर महकमे बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। बिरिहामा के लोगों का कहना है कि मुसलसल बिजली कटौती से उनका इलाका घुप अंधेरे में है। लोगों ने मांग की कि उनके इलाके में बिजली सप्लाई को बहाल किया जाएगा। नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। आज इन दिनों में माह मुबारक भी आने वाला है, तो अगर ऐसी हालत रही तो तराई पढ़ेंगे तो नमाज मतलब लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। झूठ बोलते हैं, दावतें करते हैं, उधर मीटिंग बुलाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमली तौर करते कुछ नहीं। इस बार गवर्नर साहब आया, उसने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसका ट्रांसफार्म अहमदपुरा ग्रिड का ट्रांसफार्म भेजेंगे, मगर आज तक ये वादे हैं तो ट्रांसफार्मर का तो नाम निशानी नहीं है। कुपवाड़ा के करना टंगडार रोड पर आज साधना टॉप पर SDM करना बिलाल मोहिउद्दीन बट की गाड़ी बर्फानी तोदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ताहम SDM, उसका मुहाफिज और ड्राइवर बाल बाल बच गए। इस दौरान फौज ने बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए रेस्क्यू के लिए जाए वारदात पर पहुंच गई और SDM समेत दीगर अफराद को बर्फानी तोदे से जिंदा निकाल दिया। उधर करना में एक और हादसे के दौरान एक गाड़ी दिन दहाड़े आग की नजर होकर खाकस्तर हो गई। ताहम इस वाकये में गाड़ी का ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जम्मू कश्मीर के जो लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं उनकी मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम यूपी के दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर के फंसे लोगों की भी मदद करता है। RTC JKUT ने LG को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें उन्होंने फरवरी और मार्च की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि उनके अहल खाना को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनमर्ग से अशाय खुर्दनी से लदी गाड़ियां सख्त चेकिंग और सिक्योरिटी के बाद करगिल पहुंचाई गई। इंतजामिया के जरिए दूसरी गाड़ियों से उन्हें दीगर इलाकों में पहुंचाया गया। इस मामले पर मर्चेंट एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात दूर हो गए और मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में दुकानदारों ने जरूरी अशिया तकसीम की। 5 महीनों के बाद लेह में सब्जी और दीगर अशिया पहुंचाए गए। जोजिला पास के जरिए कई जरूरी अशिया लेह पहुंचाए गए। लोगों ने खुशी का इजहार किया। जमीयत उलमा असनाश्रिया करगिल के जिली शाख अल रजा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन की कारकर्दगी को देखते हुए करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात CRPF जवानों की जानिब से आज
सदर जमियत उलमा हुज्जतुल इस्लाम शेख नाज़िर अल-महदी मुहम्मदी के दफ्तर में उनसे मुलाकात की और जवानों की तरफ से 1,75,000 रुपये का चेक उन्हें अतिया किया। दिल्ली से फ़ज़ाइये के जरिए फल और सब्जियों की खेप लदा खिलाई गई। अंजुमन मुइनुल इस्लाम ने फल और सब्जियां तकसीम की। SNM हॉस्पिटल लेह में तकरीबन 300 मरीज और तिबी अमले में इसे तकसीम किया गया। लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने ज़िले में फंसे गरीबों, मिस्कीनों और गैर मकामी मजदूरों में मुफ्त राशन तकसीम किया। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 1150 माइग्रेंट मजदूरों को राशन किट्स मुहैया की गई है। NGOs के अलावा निजी इदारे और मुतअद्दिद अफराद फूड किट्स मुहैया करके इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने ज़िले में ज़रूरतमंद लोगों को खाना और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए नोडल ऑफिसर को भी नामजद किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बांडीपुरा में अब महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की खदमात भी हासिल की जा रही है। इस हवाले से कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज महकमे सेहत की जानिब से महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के मुलाजमीन को ज़रूरी तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि मुश्तरका कोशिशों से ही हम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। कोरोना वायरस जैसी मुहल्लक बीमारी से लड़ने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन नेत्राल में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निसार अहमद की क़यादत में मुख्तलिफ जगहों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स में अद्वियात तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि ये दवाई उन अफराद को इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से दूर रखने में मददगार होगी। त्राल में आज इंतजामिया ने बंदिशों में सख्ती लाई थी। किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस दौरान SDPO त्राल डॉक्टर एजाज मलिक ने बस स्टैंड त्राल में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए रज़ाकार नौजवानों के साथ बातचीत की। ये नौजवान लॉकडाउन में पुलिस और इंतजामिया की भरपूर मदद कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी पांपोर के चेयरमैन बंसीलाल भट्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पांपोर किसी भी तरह अपना ताउन पेश नहीं कर रहे हैं। बंसीलाल के मुताबिक कमेटी जो भी काम अंजाम दिए जा रही है वो उनके नोटिस में लाने के बगैर ही अंजाम दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात 10 बजे के करीब कालंदर पांपोर में तहसीलदार पांपोर इश्तियाक महिउद्दीन ने एक पुलिस टीम के हमरा 5 टिपर गाड़ियों को उस वक्त सीज किया जो वो रात के दौरान दरिया से गैर कानूनी तौर पर रेत निकाल रहे थे। तहसीलदार ने लोगों से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करने की अपील की।